بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے لیے وفاق کا جس طرح کہنا تھا کہ پورے ہی پاکستان میں یکساں تعلیم ہم عام کی کریں گے اور غریب اور امیر کا بچہ ایک ہی تعلیم پڑھے گا، ایک ہی نصاب پڑھے گا، کیا یہ اتنا آسان ہے، کیا اتنا ممکن ہے؟ ابھی تک کے جو وفاقی حکومت کے دعوے تھے وہ حتمی شکل ان کو ابھی تک نہیں دے پائے۔ امید یہی ہے، ہماری بھی نیک خواہشات ساتھ ہیں کہ آئینی مدعا پورا ہونے تک وہ تمام جو پروجیکٹ ادھورے ہیں ان کو فلفل کیا جائے۔ میں آگے بڑھاتا ہوں پروگرام کو۔ اختر انائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں۔ اختر صاحب، آج آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاقی حکومت کے جو اس طرح کے دعوے تھے کہ یکساں تعلیم ہم دیں گے پورے پاکستان میں، آپ کو یہ پاسبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یکساں تعلیمی نصاب کی بات کی گئی تھی، اس میں بھی بہت سے معاملات تھے اور مشکلات آڑے آئیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ البتہ جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اس کوشش میں کچھ کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس طرح سے ہمیں امید ہے کہ سنگل نیشنل کیریکولم ہونا چاہیے۔ مگر جب سنگل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیمل سسٹم بھی جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ میٹرک سسٹم کو کیمل سسٹم جیسا بنا دینا چاہیے۔ کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہو، اسٹوڈنٹس کریٹیکل تھنکنگ کر سکیں، تمام پاکستانی بچے ایک ہی طرح کی ایجوکیشن حاصل کریں۔ تو کوشش تو کی جا رہی ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ صاحب کوئی فیزیبلٹی، کوئی مطلب آپ کو اس طرح کی کوئی وفاق نے اعتماد میں لیا، کچھ پلان بنا ہے؟ ابھی تک اپریل کی بات ہوئی تھی لیکن اب تو ہم آگے بڑھ گئے۔ جی بالکل، کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کافی سیمینارز ہوتے رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف یونیورسٹیز میں یا مختلف فورم پہ، اور اس میں ہماری اسکول ایسوسیشنز بھی کردار ادا کرتی رہی ہیں، مگر ہماری کچھ ریزرویشنز ایز اٹ از موجود ہیں۔ مگر کیونکہ ایک معاملہ ہے نہیں ہے، کووڈ کے آنے سے بڑی عجیب و غریب سچویشن ہو گئی۔ اس حکومت کو، پچھلی کسی بھی حکومت کو اس طرح کی کووڈ کی سچویشن فیس نہیں کرنی پڑی، تو ظاہر ہے اس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ترجیحات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جو پورا نظام ہمارا بنا ہوا تھا پہلے سے، وہی زمین بوس ہو کر رہ گیا۔ تو اب سنگل نیشنل کیریکولم کی تو بکس بنانی پڑتی ہیں، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، کام فل ٹائم ہو نہیں پا رہا تھا، اٹینڈنس 50% ہے، اور بہت سے معاملات ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ ان 5 سالوں میں یا ان باقی 2.5 سالوں میں ہو سکے گا، مگر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کر کے یہ سنگل نیشنل کیریکولم ہی بنے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ سوری فار انٹرپٹ، ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ مجھے بتائیے گا کہ پیرنٹس کی اکثر ہم شکایت دیکھتے ہیں، ہم سے بھی رجوع کیا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول کی جو انتظامیہ ہے یا پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے لوگ، کیا ان اسکولس کے جو مالکان ہیں یا وہاں پہ جو ٹیچنگ اسٹاف ہے، کیا ان کو تنبیہ آپ نہیں کرتے؟ ان کا جو رویہ پیرنٹس کے ساتھ اکثر ہمیں کمپلین اس طرح کی موصول ہوتی ہے کہ ماں باپ پڑھا لکھا اتنا نہیں ہے، اور اس کا بچہ بھلے اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے پیرنٹس اتنے پڑھے لکھے یا ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو ان کو ٹریٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ملازمین ہیں۔ اس پہ اس طرح کی شکایت آپ لوگوں کو جب موصول ہوتی ہیں تو کیا آپ اسکولس کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے جواب میں آپ کو مجھے چند منٹ دینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے جو آرٹیکل 25A ہے، میں اس سے بات اسٹارٹ کروں گا۔ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی پہلے زیادہ تر، تو بعد میں یہ 8ویں ترمیم کے بعد یہ پروونس کی ذمہ داری زیادہ بن گئی۔ تو ایکچولی تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ معیاری تعلیم 16 سال تک کے بچے کو مفت دینا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ مگر اگر ایک دور میں، ٹھیک ہے، پہلے میں ریفرنس دے دیتا ہوں کہ 1961 کا جو ایجوکیشن ایکٹ تھا، اس کے بعد پھر 77 کے ایکٹ کے اندر کچھ تبدیلی آئی۔ اس وقت پرائیویٹ سیکٹرز کو منت کی جاتی تھی۔ منت کا لفظ اس لیے ضروری ہے بولنا کہ اس کو اتنا زیادہ اٹریکٹ کیا جاتا تھا، آئیے، اور پرائیویٹ اسکولز کے ٹیچر کو 80% سیلریز جو ہوتی وہ گورنمنٹ اپنی بجٹ سے دیتی تھی، امیونٹی پلاٹ دیتی تھی، کنسٹرکشن کے لیے پیسہ دیتی تھی، ٹھیک ہے، وہ وقت تھا۔ پھر اس کے بعد 77 کے بعد کچھ اور جو ہے کمی آ گئی فنڈز کی، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ نیشنلائز ہو گئے تمام پرائیویٹ ادارے کہ جی اب ہم گورنمنٹ ہی خود تمام اخراجات اٹھائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے ضیالوگ کے بعد جب جونیرو کا دور آیا، یا اس کو وقت کے بعد پھر دوبارہ سے بڑا پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے کی موٹیویشن کے لیے پارٹنرشپ کی بات کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پبلک پارٹنرشپ کے نتائج میں بڑے مراحت دینے کی بات کی گئی۔ ایک بل پاس ہوا کہ جی آپ کو ہم ریزیڈنشل ٹیرف دیں گے، آپ کو ہم ٹیکس ریبیٹ دیں گے، آپ کو گیس فری دیں گے۔ آپ کا جہاں تک میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں، آپ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے انٹرٹین کیا جائے ٹیچرز کو۔ جب آپ کی ذمہ داری ہے، 25A آرٹیکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے پاکستان کے سٹیزن کے
16 साल तक के बच्चे यानी मैट्रिक तक तालीम देने के, तो मयारी तालीम वो भी। फिर आप प्राइवेट सेक्टर अगर आपका कांधा बनता है, आपकी हेल्प करता है, तो आप उसको मोटिवेट करें या तंग करें। आप फिर बात करते हैं जब जिम्मेदारी वहां है, फिर एक वक्त आता है कि देखा जाता है कि पहले तो पीले स्कूलों में पढ़ाई होती थी, अब पीले स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती। अब एक प्यून एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, वो भी जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है। अख्तर साहब, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मेरा सवाल ये था कि रवैया प्राइवेट स्कूल वालों का जो है वो पेरेंट्स के साथ सही नहीं होता, तो आपको भी इस तरह की शिकायत मौसूल होती होंगी, तो ये रवैये दुरुस्त रखने चाहिए। एक माँ आपके स्कूल में आती है, जब आप मदर्स डे पे या पेरेंट्स डे पे जब आप उनको बुलाते हैं तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप हमला कर रहे हैं? देखिए, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर ये पेरेंट्स जाते हैं, ये चाहते हैं कि अगर हम बात नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी औलाद बात करे, मगर क्योंकि आपको एक बात याद रहनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कभी भी अपने पेरेंट्स को जो है वो हुक्मराना या गवर्नमेंट वाला रवैया नहीं करेगा। वो एक रिलेशनशिप डेवलप करेगा, अपना एक इमेज कायम करेगा। हो सकता है वो शुरू में बात करते हैं, जब वो पेरेंट्स इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो फिर उनसे वो उर्दू में बात भी की जाती है। एज फार एज अगर आप एक ब्रांडेड स्कूल की बात करते हैं, जब आप एक मिडिल क्लास और एवरेज स्कूल की बात करते हैं, वहां पर कम्युनिकेशन होता है। इसको इंसल्ट नहीं तस्वुर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट्स खुद जाते हैं अपने बच्चों को इस तरह के स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए, ना कि जो है वो स्कूल घर पे पहुंचते हैं उनके बच्चों के लिए। जहां तक आप इंसल्ट की बात करते हैं, मैं नहीं समझता कि इंसल्ट किस तरह की है, मगर आप मुझे ये बताइए, सवाल आपसे भी है, सवाल इस माशरे से भी है, गवर्नमेंट से भी है, मुझे बताइए कि पहले आपने टीचर स्टूडेंट रिस्पेक्ट खत्म कर दी इस एनवायरनमेंट में। पहले हमारे वक्तों में, आज भी अगर मेरा उस्ताद सामने आ जाए मैं तो उठ के खड़ा हो जाऊंगा, घुटने टेक लूंगा, मगर आज का बच्चा जो है वो आज 10 साल पहले का जो बच्चा है वो आंखें दिखाता है अपने और कहता है बाहर तो निकलो। कसूर किसका है? मुआशरे का है, तरबियत का, माशरे के अंदर। तो टीचर्स के पास जब एक तालिब इल्म मैक्सिमम वक्त स्कूल में भी गुजारता है 8 से 10 घंटे, तो क्या टीचर आज तरबियत करने में नाकाम हो रहे हैं, या वो वेल एजुकेटेड टीचर नहीं है, या टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत है? एक बात याद रखिए, तरबियत टीचर की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये एक कलेक्टिव, देखें, लर्निंग एनवायरनमेंट से होती है। क्लासरूम इज एनवायरनमेंट, ठीक है, एक मोहल्ला एनवायरनमेंट होता है। एक जब घर के अंदर आप हमेशा ये समझते हो कि जब हम फीस देकर हासिल करते हैं, किसकी जरूरत है कि हमारे बच्चे को हाथ लगाए, जब आप उस एनवायरनमेंट इस तरह की गुफ्तगू करते हैं बच्चे के सामने, तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो बच्चा जाके टीचर की रिस्पेक्ट करेगा? फिर सॉरी फॉर इंटरप्ट अख्तर अरही साहब, मैं आगे बढ़ाता हूँ सिलसिले को। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की दी जा रही है कि बच्चों को स्टिक दिखानी भी नहीं है, मानना तो दूर की बात। आगे बढ़ाते हैं। अली रज़ा साहब, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का क़याम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया और बहुत सारी जगहों पर किया भी, आपको लग रहा है कि वो उस मिशन में सक्सेस हो पाए हैं? इसमें गुजारिश ये है कि किसी भी हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर काम नहीं किया है। जो भी आप बता रहे हैं थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो उसके भी रिजल्ट हमें सही नहीं मिले हैं, और यहाँ पर हमें इसकी अशद ज़रूरत है कि एजुकेशन का निज़ाम सही होना चाहिए, क्योंकि इतना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आप ये समझ लें, क्योंकि देखें ना, उन पे ये जिम्मेदारी आती है, क्योंकि 13 साल से वो सूबे में खुद मुख्तार हैं 18वीं तरमीम के बाद, और उनकी हुक्मरानी है, तो एजुकेशन का फुकदान हमारे पास बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से मुआशरे में फिर इल्लीगल एक्टिविटीज़ में वही बच्चे पाए जाते हैं जो तालीम से महरूम होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर मैं दूसरे अजला की बात कर लूँ, जो दूर दराज जैकमाबाद, लाड़काना, इस तरफ चले जाएं, वहाँ पर तो आपको स्कूल का सिर्फ नाम ही मिलेगा, वहाँ पर कोई भी ऐसे इदारे इन्होंने कायम नहीं किए जिनकी वजह से एजुकेशन को बूस्ट मिल सके। और इसमें कानून साज असेंबली भी हमारे पास मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, जो भी हुक्मरान जमात होगी इसमें एजुकेशन के बिल आने चाहिए और असेंबलीज में इनमें रिफॉर्म्स भी आने चाहिए। और जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले से अख्तर आरई साहब ने बातें की कि देखें, इनकी जैसे बात है कि इनके जो टीचर्स आ जाएं तो ये उनसे झुक के मिलेंगे, बिल्कुल इनके वक्त में ऐसा था, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो अपने उस्ताद को, अपने टीचर को माँ बाप की जगह देते हैं। तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बच्चा घर में जाहिर सी बात है कुछ तालीम तो लेगा, कुछ इखलाक तो सीखेगा, लेकिन जो उसको स्कूल से
टीचर से जो चीज़ें मिलेंगी, जाहिर सी बात है वही एजुकेशन लेकर वो वहाँ से पास आउट होकर कुछ इस मुल्क में बनेगा, इस मुआशरे में बनेगा, किसी पोस्ट पर बैठेगा, तो वो उस टीचर की बदौलत होगी। अगर ये टीचर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, देखें हमारे पास ऐसे वाक़यात मिल गए जो बच्चे थे, फिर वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के मामलात आए, ये इतने एक सेंसिटिव और हसास मामलात थे जिनकी वजह से मुआशरे का सबका शर्म से सर झुक गया। तो इसमें सबको ये देखें, किसी एक का एजुकेशन किसी एक का मसला नहीं है। आपका पॉइंट आगे अख्तर रानी साहब, मैं फिर एक आपको आखिरी तकलीफ ये दूंगा कि आपने जिस तरह कहा कि टीचर्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अक्सर आप देखें कि प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स की सैलरी का एक मामला है, तो बहुत ही कम सैलरी पर हम टीचर हायर करते हैं। स्पेशली हम प्राइवेट स्कूल्स को देख रहे हैं, मोस्टली की मैं मेजॉरिटी की बात करूंगा, तो वो 8, 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए में जो आप टीचर हायर करते हैं, वो आपके बच्चे को क्या तालीम देगा। और अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि जी बच्चों को निशान लगवा दिए जाते हैं और बच्चा सब खुद ही करता है। वो जो पहले एक्सप्लेन किए जाते थे चैप्टर्स, टीचर लेक्चर दिया करते थे स्टूडेंट्स को, पूरा चैप्टर समझाया करते थे, आजकल आपको लग रहा है वो इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, जितने कम फीस लेने वाले स्कूल होते हैं, जिसमें 500 से लेके 1500 या 2000, 2500, आप मुझे ये बताइए कि कवानीन अजीबो गरीब हैं हमारे मुल्क के। मैं अजीबो गरीब कह रहा हूँ, एक सॉलिड रीज़न है कि जब आपने 4% के इक्विवेलेंट सैलरी अप्रूव की हुई है कानून के अंदर, तो फिर पहले तो 80% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी, 20% देते थे। उससे क्या होता था कि जहाँ कम फीस होती थी वहाँ पर अच्छी सैलरी से अच्छे टीचर हायर किए जाते थे। जब आपने कानून जानबूझ के ऐसा बना दिया और 1 रुपया आप खुद नहीं देते, तो वो जाहिर है कि 5-6 हज़ार वाला या 10-15 हज़ार वाला हायर करेंगे। तो जाहिर है जब कम फीस में कम सैलरी में हायर किया जाएगा तो वहाँ क्वालिटी क्या होगी। मगर दूसरी तरफ आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपये सैलरी लेते हैं और घर पे बैठे रहते हैं और वो वीज़ा लेके कहीं और चले जाते हैं, दूसरे बिजनेस करते हैं, स्कूल में सिर्फ बायोमेट्रिक करने या एक चाय का कप पीने चले जाते हैं, वो एजुकेशन कुछ भी नहीं देते। जब इस तरह के दोहरे कानून होंगे जहाँ आपको सब्सिडी देनी चाहिए या कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए ताकि गरीब गुरबा के बच्चे उसी बीकन हाउस, सॉरी मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, किसी भी एक बड़े स्कूल के जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक एजुकेशन हो, तो इसका मतलब है जानते बूझते हुए आप जो है स्कूलों को तंग करते हैं, प्राइवेट स्कूलों के साथ सोतेले माँ बाप का सलूक करते हैं ताकि ये जो है ना कम सैलरी में स्कूल टीचर रखें और गैर मेयारी तालीम दें। इस तरह से करेंगे। आप मुझे बताइए कि आपने, चलो ठीक है हमने एहसास नहीं किया, आपने एहसास कार्ड दिया या कोई 1 महीने की सैलरी पिछले 16 महीनों में दी कि प्राइवेट स्कूल का कहां से फाके कर रहा है, और आपने कोई राशन का कुछ पहुंचाया। जहां तक दूसरी तरफ देखें कि गवर्नमेंट स्कूल के लोग हाथ पे हाथ धर के रख के बैठे हुए हैं और वो सैलरियां मुफ्त में ले रहे हैं और उनके लिए मजीद 15 महीने स्कूल बंद कर दीजिए। तो आपका कोई एहसास नहीं, कोई रेंट नहीं दिया, कोई रिबेट नहीं दिया, कोई टैक्स फ्री नहीं किया, वैसे के वैसे तमाम 16 किस्म के टैक्सेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली दिए जा रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर ही दे रहा है। तो आपने जब सोतेले माँ बाप का सलूक करेंगे तो उससे नफसियाती मसाइल पैदा होंगे। बहुत अच्छी बात आपने की और हुकूमत का आपने ध्यान इस तरफ भी दिलवाया कि जहां पर इस कोविड में आपने तमाम शोबों को मतलब रिलीफ दिया, वहां पर प्राइवेट जो स्कूल्स हैं या टीचर्स हैं उनको भी आप हुकूमतों का काम था कि रिलीफ दें, चाहे वो राशन की सूरत में दें या सैलरीज की मद में दें या उनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल या बहुत सारे मामला है, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी। बिजनेस कम्युनिटी ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, स्पेशल जो चाहे वो फूड से रिलेटेड लोग हों या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लोग हों, तो कोविड में सोशल डिस्टेंस की वजह से तमाम ही कारोबार ठप पड़ गए, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। हफीज़ अजीज़ साहब, छोटे ताजर से लेके बड़ा ताजर सब परेशान थे, अब तो 1.5 साल होने को है, आप भी मिलते होंगे, क्या अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखें, अल्लाह करे इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा तो बेहतरी पे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। मैं थोड़ी एडवोकेट साहब की थोड़ी सी बात का खुलासा कर लूँ, जरूर यहाँ बैठ के हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते। ठीक है। अब इन्होंने जो पुरानी मिसालें दी, और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये भी कह दिया कि बहरिया का खाली गेट जलाया गया, वहाँ पे शोरूम जलाए गए, वहाँ पे मोटरसाइकिलें जलाई गई, वहाँ पे तो नहीं मतलब अब मैंने आपकी बात में कुछ नहीं कहा, कंटिन्यू आप मुझे बोलने थे, फिर आप अपनी बारी पे बोलिएगा। क्या हमारी एक, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम ये नहीं देखते, हम एक ही कौमियत पे चलते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ऐसे ही है, चाहे वो पठान हो, सिंधी हो, महाजर हो,
जो भी हो, हिंदू हो, मेमन हो, गोरी हो, कोई भी हो, हम कहते हैं हमारी चैम्बर एक ही है, बिजनेस कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी, फैमिली है हमारी एक ही फैमिली। हमने बिजनेसमैन के लिए आए, बिजनेसमैन के लिए काम करेंगे। क्या वो हम में से हो सकते हैं जो कहे पाकिस्तान ना खप्पे? क्या आपने वो नारा नहीं सुना? मैंने तो सुना है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ तो लोग क्या शरपसंदी फैलाई, क्या वो गेट पे थे? अंदर थे, क्वांटिटी में अंदर थे, लाखों आदमी, वहां कोई नहीं आया। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 3000 आदमी टोटल आया। ये मैं नहीं, सारे चैनल कह रहे हैं, मैं तो काउंट करने नहीं गया हूँ। अगर इंटरप्ट ना हो सर आप वापस की बात करें, इसके बाद 8,000 पे सर 50,000 पे कर दिया ना। मैं आपकी तरफ देखिए तरीका ये होता है कि एक समझदार आदमी और इखलाक जो होता है वो ये होता है कि आप बुरी बात करें, मैं आपके बीच में ना बोलूं, और आप मुझे पूरी बात करने दें, बीच में ना बोलूं। ये तरीका ये होता है अच्छे आदमियों का, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि वो जो ना खपे पाकिस्तान वाला हाफिज अजीज, तो उसको भी मारो। वो अगर साजिद है तो उसको भी मारो। ऐसा ही है। वहां पे जो भी था, वहां पे किसी घरों की जो घंटी बजाई गई, उसके बाद नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर सिंधी रहता है, मेमन रहता है, पंजाबी रहता है, उर्दू स्पीकिंग रहता है। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, सब हमारी माँ बहनें हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं और आप अगर वहां अपना घर लेने जाते हैं या ऑफिस खोलने जाते हैं, शोरूम खोलने जाते हैं, तो क्या वहां पे सिर्फ गेट चलाया गया था? क्या वहां गेट पे केमिकल फेंका गया था? सबके वो फुटेज है, कोई एक थोड़ी, हजारों और आती रहेंगी अब तो उसके अंदर जो बाहर ये अंदर खेलते रहे और जो बोले पाकिस्तान ना खप्पे ना खप्पे, तो कहने का मतलब है हमें भी पता है वो हमारे सिंधी भाई ऐसे नहीं है, हमें भी पता है कुछ अनासिर ऐसे हैं। अब ये कौन है? ये हमारी एजेंसियों का काम है ढूंढे। फुटेज तो सबके पास है, ठीक है, निकल आएगी। और वो भी फुटेज है कि वो कह रहे कि हमें किसने भेजा है। अब वो अगर गलत है तो वो इंक्वायरी कर लें। और जो इंक्वायरी में चला जाता है ना साजिद में, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, चाहे वो बाबर गोरी वाला मसला हो, चाहे वो बल्दिया की फैक्ट्री वाला हो। आप सोचिए तो सही, किसी को जला देना, किसी को कर देना, अल्लाह के यहाँ तो जवाब देना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मफाकत अमल है, चक्की पिसती है, स्लो पिसती है, मगर पिसती बड़ा बारीक है वो। किसी के साथ तासुब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा और अब उनका भी मुतालबा है कि हमारे नुकसान को हुकूमत की जानिब से हमें एंटरटेन किया जाए और कुछ हमें भी फैसिलिटेट किया जाए, आपको लग रहा है कि सिंध या वफाक दोनों में से कोई नुमाइंदा ये भी जाएगा? क्योंकि हमने मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत देख ली, लेकिन वो जो नुकसान हुआ, जिनकी गाड़ियाँ जली या जिनकी बिल्डिंग्स को आग लगी, तो वो नुकसान कौन भरेगा? आपने इससे कबल देखा सिराज कासिम तेली साहब ने भी बहुत सारे लोगों को एंटरटेन किया, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे। आपने बहुत सारा वक्त गुजारा सिराज कासिम तेली के साथ, क्या देखते हैं आज कोई लीडर है जो उनको राइट्स दिलवा सके? देखिए, जो सिराज भाई का मुकाम था, हमारे चेयरमैन साहब थे जो अल्लाह की रजा, देखिए ना, मौत में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। बड़े बोल्ड आदमी थे, सच बात करते थे और हमें ताकीद करते थे कि सच बात करना और झूठ बोलने से डरना। झूठ बोलोगे तो मेरे में नहीं रहोगे और सच बोलते हुए डरना नहीं। ठीक है, हम उसी सिस्टम पे चल रहे हैं। ठीक है, मुहर्रम में बिल्डिंगें जलाई गई, कुछ चंद लोगों ने जलाई ना, जो मुहर्रम का वाकया था। हमें कितना पैसा गवर्नमेंट ने सिंध ने दिया, जरदारी साहब ने दिया, हमने उसमें से 1.25 अरब रुपया वापस किया। बिल्कुल ऐसा ही है, वापस किया कि ये पैसा बच गया, हकुल्ला हमने बांटा है सबको जायज। ठीक है, और वो कमिटमेंट मुझे याद है सिराज सेठ ने कमिटमेंट लिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब से कि आप इसके अंदर, क्योंकि आग लगाई गई थी कि कराची के ऊपर फायर फाइटर्स पे ये आप पैसे लगाएंगे। मैं इस चीज का आई विटनेस हूं, मैं उस सीएम हाउस में बैठा हुआ था। ठीक है, चले जो हुआ कुछ हुआ। अब बात यह है कि बेनजीर साहिबा की जिस दिन शहादत हुई उस दिन भी बड़े हालात खराब हुए और काफी चीजों को जलाया गया, अमला को जलाया गया, लूटा गया, तोड़ा गया, मारा गया, ट्रेनों को लूटा गया, पटरियां उतार दी गई। जिसने भी किया अल्लाह उसको उसका अंजाम तो मिलेगा उसको। उस पर भी गवर्नमेंट ने क्लेम दिए थे। ठीक है ना, मेरी भी 2 गाड़ियां जली थी, मुझे क्लेम नहीं मिला। अच्छा, ना मैंने क्लेम दाखिल किया। ठीक है ना, जिनके राइट थे, ठीक है, होता है। ये तो कहने का मतलब ये हक बनता है, क्योंकि देखिए आपके पास पावर थी, वो रुका नहीं। और एक शहरी का ये हक है कि उसने अपनी ईमानदारी से एक चीज बनाई और बिला वजह उसका कसूर नहीं था ना।
دیکھیں نا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, جس نے شو روم بنایا ہوا ہے, یا فیملی گھومنے آئی ہے, اپنی گاڑی کے شیشے توڑ دیے, جو بیچارہ جاب کر رہا ہے, اس کی موٹر سائیکل اسی کی ہوگی نا, جو جاب کر رہا تھا, تو باہر نکال کے جلا دی گئی نا. 12-14 موٹر سائیکل تو مجھے بھی نظر آ رہی تھی کہ جل رہی ہیں, گاڑیاں کلٹی کر دی, کچھ جلا دی, تو وہ ان کا قصور تو نہیں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں میں پوچھ لیتا ہوں علی رضا صاحب, آپ نے کہا کہ 8,000 لوگوں پر FIR درج کی گئی ہے, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ ٹھیک ہوا ہے یہ؟ بہت سارے لوگوں نے اس پہ حصہ لیا اور بہت سارے لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے, انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, تاکہ فیوچر میں ہم اس طرح کے حالات نہ دیکھیں. بڑی مشکل سے کراچی کے حالات بہتری کی طرف ہوئے ہیں, اور میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ کہوں گا کہ ہم خیر کی بات کریں, ہم صلح صفائی کی بات کریں, نہ کہ ہم زبانوں اور فرقوں اور ان چیزوں میں ہم لوگوں کو اور تقسیم کریں محض ایک ووٹ کی لالچ یا ایک سستی شہرت میں کہوں گا اس کے حاصل کرنے کے لیے. جی اس میں سر گزارش یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے واقعے کے معاملے پہ پہلے ہی میں نے مذمت کی کہ جو بھی املاک وہاں پر جلے, جو بھی نقصانات ہوئے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر میں دوبارہ یہ کہوں گا پیسفل پروٹیسٹ کرنے آئے تھے, کوئی وہ وہاں پر مائیں بہنیں بچے اپنے گود میں اٹھا کر آئی تھی, وہ کوئی آگ جو بھی وہاں پر ہم دیکھیں, ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان مخالف کوئی بھی نعرہ لگائے گا ہم اس کو کنڈیم کریں گے. وہ جو لوگ اندر چلے گئے تھے وہ پروٹیسٹ والوں میں سے نہیں تھے, کنٹینرز نہیں, پروٹیسٹ والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے. یہاں پر یہ ایک سازش کے تحت جو کام کیا گیا, یہ کچھ چند عناصر ہوتے ہیں جو ایسی چنگاری پھینکتے ہیں جس سے یہ ملک کے جو معاملات ہیں سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ وہ وہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ فیکٹس اور فگرز میرے بھائی نے تو بتایا کہ 3,000 ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جا کے ایجنسیز کی رپورٹ پہلے چیک کر لیں, تو اس کے بعد. اور دوسری بات, اگر میں نے کسی پولیٹیکل تنظیم کا, متحدہ قومی موومنٹ کا نام لیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جائے وقوع پر جا کے وہ پریس کانفرنس کر کے وہاں پر دھمکائے گی, وہاں پر ماحول خراب کرے گی, میں ان کا نام اٹھاؤں گا, بار بار اٹھاؤں گا. اور یہ میرے بھائی تو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے, کوئی متحدہ کو تھوڑی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ان پہ یہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 60% ہماری آبادی وہاں پر سندھی بھائی رہتے ہیں, اردو اسپیکنگ بھائی. اگر دیکھیں بلدیہ فیکٹری کا میں کہہ رہا ہوں, تو وہ جو جلے وہ ہمارے بھائی تھے, مجھے ان کا دکھ ہے, میں کیوں ان کی بات نہیں کروں گا. جہاں پر کراچی میں اگر کسی کی موٹر سائیکل جلتی ہے, کسی کی کار جلتی ہے, تو ہمیں اس کا احساس ہے, کیونکہ ہم دیکھیں پیسفل لوگ ہیں, ہم تھوڑی کوئی پرتشدد واقعات کیسے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ پر بڑا ایک فرض ہوتا ہے, آپ کی فین فالوئنگ ہے, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, آپ اس ملک کو اور اس ریاست کو چلانے میں آپ لوگوں کا حصہ ہے. تو اگر آپ جیسی شخصیات, مطلب میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ان لیڈران کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کی پریس کانفرنس داغ دیتے ہیں, تو اس سے عام عوام اور ہماری گلی کوچوں میں کیا میسج آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی ریٹ کو وہاں پر چیلنج کیا گیا. وہاں پر اگر دیکھیں کوئی ایک آدھ اس جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا, اگر ان میں سے بھی کوئی بندہ اس چیز میں ملوث پایا جاتا ہے, اس کی بھی مذمت کریں گے. اس سے ظاہر سی بات ہے, اگر وہ کسی اس سیاسی تنظیم کا, ان کے لیڈران نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہم میں سے نہیں ہے, بار بار اسٹیج سے وہاں پر اعلان کیا گیا کہ اندر کون بندے ہیں, پولیس کھڑی ہوئی ہے, آپ جا کر وہاں پر چیک کریں. اور بحریہ ٹاؤن کے گیٹس پر اندر سی سی ٹی وی کیمراز لگی ہوئی ہیں, ان کی مینجمنٹ ہے, وہاں پر تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. وہ بندے اندر گئے کیسے, سوالیہ نشان یہاں پر ہے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, فری ٹرائل انکوائری ہونی چاہیے. اور جو ایف آئی آر ہوئی ہے, اب دیکھیں نا ایف آئی آر میں تو ایاز لطیف پلیجو کا نام ہے, وہ تو حیدرآباد بیٹھا ہوا تھا, ایک فوٹیج نہیں ہے, فوٹو نہیں ہے, پروٹیسٹ میں تو وہ آیا ہی نہیں ہے, تو اس کا نام کیسے آ گیا؟ اس میں ہر چیز کو دیکھ کر پھر جو ہے یہ آگے جو ہے فری ٹرائل انکوائری ہونی چاہیے. اس میں کوئی بھی ملوث ہو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے. ہم کو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں جو رہتے ہیں ان کے شو روم جلا دیں, کہ بزنس کمیونٹی ہماری کمیونٹی ہے, ہمارے بھائی ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے وہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ پاکستان ہے. ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتری کر دے گا. اور جیسے ملک کے حالات ابھی دیکھیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کے بھی مطالبات آ رہے ہیں بحریہ کے حوالے سے.
से, क्यों दीगर जो है जैसे हफीज भाई अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वहां पर क्यों इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। अरबों रुपए मलिक रियाज ने लोगों के लिए हुए हैं जिनको हवाओं में प्लाट दे दिए, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, बाहर बैठे हुए हैं, आपको कुछ चंद माह में उनका प्रोटेस्ट मिलेगा बेरिया के बाहर। निजी सोसाइटीज जितनी भी हैं, किसी एक के किसी भी फेलियर का या किसी एक की गलती का नुकसान अवाम उन्नास से न निकाला जाए, बल्कि अफाम तफहीम के साथ वो मसाइल हल किए जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके। मैं लास्ट में चाहूँगा कि अख्तर अराई साहब क्या मैसेज देंगे हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाली यूथ को और उन स्पेशल यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात को जो कि अमली ज़िंदगी में अब कदम रखने जा रहे हैं, किस तरह मुल्क को मिलत की खिदमत करनी है? देखिए, पाकिस्तान को सर्व करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हालिया दिनों में ख़ास तौर पे जब विदाउट एग्जामिनेशंस बच्चे पास होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या इनपुट होगी और किस तरह वो अपना ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स लेंगे। तो स्कूल्स जो हैं बेसिकली बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, जो सेकेंडरी स्कूल्स एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाना है। तो हम तो ये गवर्नमेंट से कहते हैं कि खुदारा जो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें, आप ऐसा कोई प्लान बना दें कि इस वक्त आपको तालीमी इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे 10 साल पीछे चले गए हैं, कोई 5 साल पीछे चला गया है, अब वो क्वालिटी एजुकेशन होगी नहीं तो हम किस तरह से प्रोफेशनल्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वो क्वालिफाई कर सकेंगे। खुदारा स्कूल्स के साथ जो है सौतेली माँ बाप का सलूक मत कीजिए, उनको कोई ऐसा पैकेज दीजिए। और दूसरा ये है कि जो छोटे स्कूल्स हैं, जो कम फीस वाले हैं, उनको माहाना बेसिस पर जो है कम से कम जो है कुछ इस तरह की बजट मिलनी चाहिए और उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए, ओल्ड एज बेनिफिट, सासी और पता नहीं कितने कितने टैक्स लगाए हुए वो सब टैक्स माफ कर देने चाहिए ताकि वो अपनी नेशन को, पाकिस्तान को बेहतरीन सर्व कर सके। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है। हफीज़ अजीज़ साहब, क्या आप पैगाम देंगे हमारे आने वाले नौजवानों को कि किस मुस्बत सोच के साथ किसी भी शोबे में रहकर पॉजिटिविटी पे काम किया जाए, मुल्क के लिए काम किया जाए, क्योंकि ये मुल्क हमसे और आपसे है। आप क्या पैगाम देंगे? साजिद भाई, अगर मैं एक लफ्ज़ में कहूँ कि हर फर्द अगर वो अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाए ना तो पाकिस्तान के मसले अंदरूनी सारे ख़त्म हो जाए। क्या बात है। वो खाली अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले कि मेरी जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैं ईमानदारी से पाकिस्तान की अपने आप पे सोच ले, ईमानदारी का फैसला कर ले। जिस तरह हम यूरोप में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप देखें उनको, अब ऑस्ट्रेलिया में, जापान में चले जाएं, 10 लाख पड़ेंगे कोई नहीं उठाएगा, या तो मोबाइल गिर जाता तो नहीं मिलता है। हर कोई ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी निभा लेना पाकिस्तानी, खुदा की कसम पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात की हफीज़ साहब। अली रज़ा साहब, लास्ट में चाहूँगा आप क्या पैगाम देंगे आने वाले नौजवानों को कि किस तरह, चाहे वो सियासत में आए, बिजनेसमैन बने या एडवोकेट बने, किसी भी शोबे में आए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हफीज़ साहब ने जिस तरह का ईमानदारी, आप क्या कहेंगे? जैसे हफीज़ भाई ने ये बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनसे कि हर बंदे को अपनी जो है जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है और हमें इस मुल्क को, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए इस लसानियत से, मज़हब से, ज़बानों से बालातर होकर और सबको मिलजुल कर अमन और भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। और हमारे पास कोई तफरीक नहीं है, ये बस कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जो ये करते रहते हैं, फिर जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। ये मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात की आपने, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इसी उम्मीद के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जहां माइनॉरिटीज़ को भी राइट देता है, रवादारी की बात करता है, यहाँ पर तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और उनकी भी इबादतें आज़ाद हैं, वो भी इबादतें करते हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसी अमन के पैगाम को हमने आगे बढ़ाना है। और ये तो बहुत सारे मतलब छोटे मसाइल हैं, और जो रॉन्ग नंबर्स इस तरह की सियासत करते हैं या इस तरह की सियासत को फ़रोग देते हैं, हमें उनको अब माइनस करना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।